So, good evening, everyone, and very welcome to your own magic book reading session. Thank you so much for joining on a Saturday. Thank you for being committed to your dreams to make your life amazing. Thank you. Thank you so much. So, we started the book yesterday where we went through a little bit of introduction and also went through the acknowledgements which Rhonda Byrne has written for all the group members who have been involved in the journey of the book. So we will start here from today. We left here. Just a minute. Great mysteries revealed. So I'll just share my screen now. So the great mystery is revealed. Let's start from here. A great mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. So ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू एक होली स्क्रिप्चर था जिसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ था एक रिडल की फॉर्म में एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि जिसके पास होगा उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं होगा वो भी उस जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये लाइन बड़ी रिडल की फॉर्म में थी कि मतलब अनजस्ट भी लगती है कि ये क्या बात हुई, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे ये वो भी ले लिया जाएगा। तो ये एडमिट वही आगे भी बोल रही है कि लेट्स first we will read this. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली इसको पढ़ के ऐसा लगता है ना कि ये तो बहुत ही अनजस्ट है कि रिच विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअरर। मतलब जिसके पास है वो भी चल जाएगा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी चल जाएगा। तो ये तो बहुत ही अनजस्ट सी लाइन लगी। तो उसमें क्या था, रिडल थी जिसको सॉल्व करना था, एक मिस्ट्री थी जो किसी ने भी उसको सॉल्व करने का ट्राई नहीं किया। और बाद में पता चला कि इस इसमें एक वर्ड मिसिंग था, इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड मिसिंग था। तो वो आंसर क्या था उस मिस्ट्री का, वो आगे बता रही हूँ। The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. ठीक है, तो बहुत सारी सेंचुरीज तक लोगों को उसका वो मिस्ट्री का वर्ड नहीं पता था। तो बाद में पता चला कि उसका मतलब था ग्रैटिट्यूड। सो क्या बना उससे? Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. है ना। तो जिसके पास कृतज्ञता होगी, जिसके पास ग्रैटिट्यूड होगा, जिसके पास थैंकफुलनेस होगी, जो ग्रेटफुल होगा उसको और दिया जाएगा, और जो ग्रेटफुल नहीं होगा तो जो भी उसको दिया है वो उससे ले लिया जाएगा। मतलब आप अगर जो भी आपके पास है प्रेजेंटली उसके लिए ग्रेटफुल हो तो आपको और मिलेगा। ग्रेटफुल हो मतलब थैंकफुल हो, आप भगवान जी को हर रोज बोल रहे हो वाओ आपने मुझे इतनी अच्छी बॉडी दी, आपने इतना अच्छा मुझे घर दिया, इतनी अच्छी फैमिली दी, मेरे को नोज दिया, मेरे को आईज दी, मैं देख सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, है ना। मेरे को जो जो भी दिया, क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ? क्या मैंने कभी भगवान जी को जाके थैंक यू बोला? अगर बोला तो मुझे और मिला होगा वही सब, और अगर नहीं बोला तो मेरे पास कोई ना कोई लैकिंग होगी आज। तो अभी वो एक्सप्लेन करेगी कैसे। By the revelation of one hidden word, a cryptic test is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they were ever. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words.
If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. तो ये ना अब आपको, ये इसने एक लाइन बता दी आपको, पहले गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से बताई, फिर हिडन वर्ड बता दिया, फिर उसके बाद ये बोला कि 2000 ईयर्स से ये वर्ड्स रिकॉर्ड होते जा रहे हैं और ये आज भी उतने ही ट्रू हैं जितने कि वो 2000 साल पहले थे। ठीक है, तो प्रॉमिस ऑफ द मैजिक दैट विल हैपन विद ग्रेटिट्यूड इज इन दीज वर्ड्स। मतलब मैजिक का प्रॉमिस, मतलब मैजिक आपकी लाइफ में आएगा, उसका प्रॉमिस क्या है, उसके प्रॉमिस के लिए ये लाइंस है। मतलब इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर एंड यू विल हैव एन अबंडेंस। तो ये वाली लाइन अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली, इफ यू आर ग्रेटफुल, अगर आप ग्रेटफुल हो गए, तो मैजिक का ये प्रॉमिस है कि वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मतलब हम बोल रहे हैं ना कि अभी अभी जैसे हमने शुरू से सुना, थोड़ा थोड़ा सुना, मैजिक विल टर्न चेंज योर एंटायर लाइफ, एंटायर एग्जिस्टेंस, वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। ये जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं अभी, कल से जैसे हमने स्टार्ट किया बुक, तब से वो बोल रही है कि मैजिक आएगा, मैजिक हो जाएगा, जैसा बचपन में था वैसा हो जाएगा। लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा ऐसे कि आप ग्रेटफुल हो, मैजिक होगा। ये प्रॉमिस है, ये हमारा प्रॉमिस है, ये बुक का प्रॉमिस है, ये उन सब लोगों का प्रॉमिस है जिन्होंने ये प्रैक्टिसेस करी हैं। और आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखोगे एंड यू विल सी द मैजिक ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो बोल रही थी ना कल, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। सो अब वो क्या करेगी, अब वो सारे स्क्रिप्चर्स कुरान का, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनका एग्जाम्पल्स देगी कि कैसे कैसे ये लाइन ग्रेटिट्यूड के बारे में हर जगह लिखी हुई है, ये प्रॉमिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो फ्रॉम द कुरान द प्रॉमिस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज इक्वली एम्फेटिक। कैसे? And remember, when God proclaimed, "If you are grateful, I'll give you more, but if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." तो ये लाइन कुरान की उसने उठाई है कि कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो मैं सब कुछ दूंगा, और अगर अनग्रेटफुल हो तो मेरी पनिशमेंट भी सिवियर होगी। ठीक है, तो ये कुरान के वर्डिंग्स है। It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They're describing a fundamental law of science and of the universe. तो वो कह रहे हैं कि आप रिलीजियस हो नहीं हो, आप कोई रिलीजियस फॉलो करते हो नहीं करते हो, आप जो भी आप करो नहीं करो बिलीव, ये लाइंस आपकी लाइफ में अप्लाई होती हैं, होती हैं। और अब वो आपको ये साइंस के थ्रू समझाएगी। अभी तक उसने एक स्टेटमेंट दे दी, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, बहुत पुराने लोग लिख के गए हैं, है ना, हम बहुत देर से सोच रहे हैं कि अच्छा अच्छा स्क्रिप्चर से ही बनी हुई है बुक, लेकिन वो अब आपको यही लॉ साइंस से समझाएगी। It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets. Like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. तो वो बोल रहे हैं यूनिवर्सल लॉ से चल रहा है ग्रेटिट्यूड। ठीक है, कैसे चल रहा है? पूरी धरती पे, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के फॉर्मूले से अट्रैक्ट हो रही हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जिसने पूरे सोलर सिस्टम को एकदम वैसे प्रॉपर प्लेस पे रखा हुआ है। यानी अर्थ अगर रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, और मून उसके चारों तरफ घूम रहा है, या फिर जुपिटर अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, या फिर सन से हम जितने डिस्टेंस पे हैं उसकी वजह से जो ग्रेविटी हमारे अंदर है, या हम जैसे भी, मतलब हमारा अर्थ का जो भी सिस्टम चल रहा है, वो सब एक लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो लॉ क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी हर, यानी धरती के लेवल पे देख लो, अपने सेल्स के लेवल पे देख लो, ह्यूमन बीइंग होने के लेवल पे देख लो, एवरी सिंगल क्रिएचर इज वर्किंग अंडर दिस लॉ।
लॉ ऑपरेट, और हमारी लाइफ में ये लॉ कैसे काम करता है? अभी तक तो हम बाहर बाहर की बात कर रहे हैं कि सब्सटेंसेस में लॉ, मतलब सब्सटेंसेस में अट्रैक्शन होती है, सेल्स सेल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं तभी कोई क्रिएचर बनता है। लेकिन हमारी लाइफ में ये लॉ हमारी थॉट्स और फीलिंग से चलता है। यानी एनर्जी, सारा गेम एनर्जी का है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीबडी एग्रीज विद दैट, राइट? एनर्जी से बने हैं हम, एनर्जी से बना है यूनिवर्स। एनर्जी है जो हमारे अंदर है, जिससे हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर से वो एनर्जी गई, खत्म, हमारी बॉडी कुछ है ही नहीं फिर। है ना? वही एनर्जी है जो हमें जिंदा रखे हुई है, जो हमसे बुलवा रही है, जो सब कुछ करा रही है, राइट? तो उसी एनर्जी के चलते हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारी एनर्जी होते हैं, राइट? हमारे थॉट्स और फीलिंग्स भी हमारी एनर्जी से ही बनते हैं। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, यू अट्रैक्ट टू यू, वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है हमारी थॉट्स और फीलिंग्स से। मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक फीलिंग्स वाले ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे, लाइक थॉट्स वाले लोग ही आपकी लाइफ में आएंगे। आप जैसा भी सोच रहे हो, जैसा भी फील कर रहे हो, उसी टाइप के सर्कमस्टांसेस, उसी टाइप के लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. है ना? तो अपनी अपनी लाइफ में देखो, ये वाले जो सेंटेंसेस अभी अभी इसने बोले, नेगेटिव सेंटेंसेस सारे, है ना? कि मैं तो बिल ही नहीं पे कर सकती, मेरी तो लाइफ ही मेस है, मेरे तो बच्चे ये प्रॉब्लम है, मेरी तो मैरिज में भी प्रॉब्लम है, मैं वो तो मुझे कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता, मेरी जॉब में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जॉब इतनी हेक्टिक है, मेरी सैलरी कम है, या मेरा बॉस ऐसा है, या जो भी हम अपनी लाइफ में बोल रहे होते हैं, यहाँ का तो वेदर ऐसा है, यहाँ की तो रोड जैसी है, यहाँ तो इतना पोल्यूशन है, या तो ये, यहाँ तो वो। हम सारा दिन जो भी ये सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब हम जो भी बोल रहे हैं, वो नेगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव। अभी उसने फर्स्ट स्टेंजा में नेगेटिव की बात करी, अब वो नेक्स्ट स्टेंजा में पॉजिटिव की भी बात करेगी कि अगर हम उल्टा बोलेंगे, मतलब अगर हम अच्छा बोलेंगे, तो वैसा ही होगा। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। But if you think about what you're grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. है ना? तो वो बोल रही है कि अब आप इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है? अभी तक अगर आपने नहीं बोला है, अगर आप न्यू टू द बुक हो, आप इस दुनिया में पहली बार आए हो, तो आपके लिए ये समझने की बात है कि आपको अपने सेंटेंसेस, जो भी आप डेली रूटीन में बोलते हो, उसको चेंज करना है। उसमें हमें क्या चेंज करना है? सिर्फ हमारा पूरा फोकस उस चीज पे होगा जो कि अच्छा हुआ। बुक आपको धीरे धीरे ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस कराएगी कि आपका ध्यान खुद ही अच्छी अच्छी चीजों में होने लग जाएगा। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो अभी हमें, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया, हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हम सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हम जो भी बोल रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है? अब मैं स्टार्ट करूँ बोलना, ओ आई लव माई जॉब, मेरी फैमिली की, वो सच है नहीं है? अभी आपको ये नहीं सोचना सच है नहीं है, पर कई बार हम एफर्मेशन की फॉर्म में बोल रहे होते हैं कि हाँ ऐसा हो जाए। लेकिन पहले हम ये भी सोच सकते हैं कि हम वो बोले जो हम चाहते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जॉब को प्यार करूँ, तो बोलूंगी आई लव माई जॉब, वाओ। तो जब मैं बोलूंगी ना आई लव माई जॉब, तो मेरे माइंड में भी अपनी जॉब को लेके बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखने लग जाएंगी कि मेरे को क्यों प्यार है अपनी जॉब से। तो बहुत सारी चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि मेरे पास एक ऑफिस है, मुझे सैलरी मिलती है, मेरे को अच्छा डेस्क मिला हुआ है, बहुत वार्म होता है, या फिर बहुत एयर कंडीशनिंग अच्छी है मेरे ऑफिस में, या मुझे वहां पे कॉफी मिल जाती है, या फिर
मेरे बहुत अच्छे कलीग्स हैं, मुझे कोई कोई सपोर्ट कर देता है। ऐसे करते करते हमें वो चीजें दिखने लग जाएंगी जो हमें अभी नहीं दिख रही थी। अगर हम अपना पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज कर दें, वो हर चीज पे अप्लाई होता है, फैमिली पे भी, वेकेशन पे भी, और दिन पे भी, और हमारी फीलिंग पे भी, खाने पे भी। अब खाने में हम क्या, आज अगर हम खाना खा रहे हैं, हम उसकी बुराई करते जा रहे हैं, अरे यार मैंने पिज्जा क्यों खा लिया यार, इतना चीज था उसमें। तो फिर खाया भी और बुरा भी बोल दिया उसके लिए। तो पिज्जा के चीज को एंजॉय कर लो उस टाइम पे, और बहुत बहुत ग्रेटफुल हो जाओ कि वाह मुझे पिज्जा खाने को मिला, इतना टेस्टी था। तो दिस इज द वे वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ स्पीकिंग। और उसमें क्या होगा कि हम एक मेटल की तरह, ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर्स डेवलप करता जाएगा, और उतना ही अबंडेंस हम अपनी लाइफ में मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने लगेंगे। इट इज यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of these sayings are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you ठीक है, apply तो अब वो न्यूटन्स लॉ से समझा रहा है सेम लॉ को, कि न्यूटन ने क्या बोला था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जो भी एक्शन हम करते हैं उसका एग्जैक्टली इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब अगर हमने जैसे छोटा सा ही, जैसे हमने साइंस में पढ़ा था कि हम बॉल को वॉल पे फेंकेंगे, तो जिस फोर्स से फेंकेंगे, जिस डायरेक्शन से फेंकेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही वो हमारी तरफ वापस आएगी। है ना, तभी वो अपने फोर्स लगाई, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हुआ। तो इस लॉ को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more you sincerely and the more deeply grateful you feel, है ना, तो वो उसने उस लॉ को ग्रैटिट्यूड से जोड़ दिया। उसने ये बोला कि एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स कॉजेस एन ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ रिसीविंग। आप गिव कर रहे हो तो आप रिसीव करोगे, जैसे उसने भी बोला था ना, व्हाट यू रीप व्हाट यू सो, यू रीप व्हाट यू सो। सो जो भी आप बीज बोओगे वही आपको फल मिलेगा। तो ऐसे ही व्हाट यू रिसीव विल ऑलवेज बी इक्वल। सो ये भी कह रही है कि जितना आपको, विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू हैव गिवन। मतलब आप थोड़ा ग्रेटिट्यूड करोगे तो थोड़ा आएगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा आएगा। मतलब अमाउंट के लिए भी बोल रही है कि जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही आप रिसीव करोगे। दिस मीन्स दैट एवरी एक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड सेट्स ऑफ अ रिएक्शन ऑफ रिसीविंग। मतलब हर एक थैंक यू पे हमें कुछ ना कुछ मिलना ही है रिटर्न में, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, एंड द मोर सिंसियरली एंड द मोर डीपली ग्रेटफुल यू फील, इन अदर वर्ड्स। in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. ठीक है, लॉ की तरह The समझा दिया। golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. तो Muhammad अब ये सारे रिलीजन से समझाएगी। अभी उसने आपको साइंस से समझाया, अभी क्या इंट्रोडक्शन चल रही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में रोंडा बन ये चाहती है कि डे वन स्टार्ट होने से पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपका लॉजिकल माइंड ये समझ जाए कि हम ये जो आगे आगे इस बुक को करने वाले हैं, 28 दिन की जो ये बुक है, उसमें हम कुछ भी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे लॉ है, उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे रिलीजन की सारी स्टैम्प लगी हुई बातें हैं, जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम डे वन पे हैं और फिर आपका लॉजिकल माइंड कह रहा है अरे क्यों करना है ये ग्रेटिट्यूड। ये मैंने कल भी बोला था, दोबारा बोल रही हूँ
कि किसी भी तरह से लॉजिकल माइंड आपके ग्रेटिट्यूड के अंदर वो इंटरफियर ना करे, इसलिए ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन पे हम इतना टाइम लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये बता रहे हैं रिलीजन की वर्डिंग्स में। Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. है ना, मोहम्मद ने भी कहा, बुद्धा ने भी कहा। अब आगे पढ़ते हैं। Lao Tzu said, if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. है ना, लाओजू ने कहा कि इफ यू रिजॉइस इन द वे थिंग्स आर, द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। इसका क्या मतलब, हर चीज जो आपके अंदर है, हर चीज जिसमें आप रिजॉइस कर रहे हो, मतलब जॉय से भरे हुए हो, खुशी से भरे हुए हो, तो होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। कृष्णा क्या कह रहे हैं, वट एवर ही इज ऑफर्ड एक्सेप्ट विद जॉय। मतलब जो भी उनको मिलता है वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जितनी भी लाइंस हैं, इनको हमें अपनी लाइफ में उतारना है। हम अपनी लाइफ में कितने खुश होते हैं, मतलब हमें जो भी मिला भगवान जी से आज तक, बचपन से लेकर आज तक जो भी मिला, क्या हमने उसके लिए, हाँ, क्या हमने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया? अपने आप को देखो उन टर्म्स में। क्या हमने हमेशा से इस बात को माना कि वाह थैंक यू भगवान जी, आपने तो बहुत ही अमेजिंग मेरे को फैमिली दी, मेरे को घर भी दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे हमेशा, मेरे पास हमेशा ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल थी, या मेरे पास स्कूटर था जिससे पापा मुझे ले जाते थे, या जो भी बातें थी, इलेक्ट्रिसिटी थी आपके घर में, आपके घर में कूलर था, पंखा था, किचन था, खाना था, टिफिन मिलता था। तो क्या हमने उन चीजों को कभी भी जॉय से एक्सेप्ट किया, या हम कंप्लेन कर रहे थे तब भी, या हम कुछ किसी और चीज के लिए कंप्लेन कर रहे थे, या हम किसी टॉय के लिए रो रहे थे, या हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं पास्ट में। लेकिन आज हमें पता चला है कि जो भी जो भी चीजें हमें मिली हैं, उसको हमें जॉय से एक्सेप्ट करना है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। और जब हम उन चीजों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे तो होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू, बोल रहे हैं ना ऊपर, होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। तो आगे बढ़ते हैं। King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee and Cherokee to the Tahitians, Eskimo and Maori, the practice of gratitude at the very root of most indigenous traditions. है ना, तो उसने हर हर रिलीजन को टच कर लिया, अमेरिकन, अफ्रीकन, जूलू, ऑस्ट्रेलियन, तहीतीज, एस्किमो, सबके नाम ले लिए, क्रिश्चियनिटी का नाम ले लिया, कृष्णा का नाम ले लिया, लाओजू का नाम ले लिया, बुद्धिज्म का नाम ले लिया, कुरान का नाम ले लिया, हर एक रिलीजन का नाम ले लिया, जहाँ पे उन्होंने थैंक यू को, ग्रैटिट्यूड को एक वेरी रूट में रखा है। अपने हर हर एक रिलीजन में रूट में था, है ना, ग्रैटिट्यूड। तो ये आगे क्या बोल रहे हैं। When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. है Is ना, तो बोल रहे हैं कि सुबह उठे हो तो लाइट के लिए थैंक यू करो। अगर सन नहीं आए तो कैसा लगे ना, पूरे दिन सन ही नहीं आया, कैसा लगेगा आपको? क्या हमने उसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, या हमने कभी सनलाइट को थैंक्स किया, अपनी स्ट्रेंथ को थैंक्स किया, आज मैं जिंदा हूँ उसको थैंक्स किया, सुबह उठते ही आई एम अलाइव, है ना, मेरे फैमिली मेंबर्स अलाइव हैं, मैं अलाइव हूँ, हम अच्छी हेल्थ में हैं, हमें खाने को, हमारे पास खाना है, उसके लिए थैंक्स बोल सकते हो ना। तो बोल रहे हैं अगर आपके पास रीजन नहीं है ना थैंक्स करने का, तो फॉल्ट आप में ही है कहीं ना कहीं। क्या, दीज आर द वर्ड्स बाय। other words by Tecumseh, Shawnee Native American leader. History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived.
Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. तो ये उन Albert सबका Einstein's नाम son. ले रहे हैं जिन्होंने जो ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स रहे हैं ना हिस्ट्री में। मतलब ये सारे नाम जो आप देख पा रहे हो ये सारे फेमस नेम्स हैं, राइट? कौन सब, इन सबको सब जानते हैं, शेक्सपियर को सब जानते हैं, गांधी, मदर टेरेसा, इमर्सन हो गया, न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया। ये सारे या तो लीडर्स रहे हैं, या कोई इन्वेंटर्स रहे हैं, या कोई राइटर्स रहे हैं, या किसी ना किसी तरह से उन्होंने नाम रोशन किया अपना, है ना? इन सब ने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी है। चलो आगे पढ़ते हैं। Scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं कि जब भी उससे पूछा जाता था कि आपकी अचीवमेंट्स के पीछे राज क्या है, तो वो हमेशा बोलता था गिव थैंक्स टू अदर्स। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स था वो। और वो दिन में 100 टाइम्स थैंक यू बोलता था, एक दिन में, फॉर ऑल द वर्क दे हैड डन। मतलब 100 बार थैंक यू। हम कितनी बार बोलते हैं? और वो भी दिल से बोलता था। तो क्या बोल रहे हैं वो? इज इट एनी वंडर? Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. है When ना, is क्योंकि वो ग्रेटफुल था, इसीलिए उसको इतनी सारी डिस्कवरीज कर पाया, इसीलिए वो इतना फेमस हुआ। तो वो अपना राज बता रहा है, और हर दिन करता था वो प्रैक्टिस, हर दिन। और इसलिए उसको मेनी फॉर्म्स ऑफ अबंडेंस मिली। Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science in humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. है ना? तो वो क्या बोल रहा है? शोल्डर ऑफ जॉइंट जाइंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? वो बोल रहा है कि बहुत सारे लोग जिनकी वजह से मैं वहां खड़ा हुआ, है ना, बहुत सारे लोगों जिनकी वजह से मैं अपनी डिस्कवरीज कर पाया, जिस माहौल में मैं रहता था, हो सकता है जो जिस घर में मैं, दोज मैन एंड वुमेन हु लिव्ड बिफोर हिम, मतलब जिन्होंने, हो सकता है, उस घर की नींव बनाई हो जिसमें वो घर, जिस लैब में वो बैठा था, या जिस घर में वो बैठा था, है ना, जहाँ पे भी वो रोड पे चल रहा है तो रोड भी किसी ने बनाई होगी। तो इस तरीके से वो उन सभी मेन एंड वुमेन के लिए थैंकफुल था जो उससे पहले जी के गए। हो सकता है उसके एंसेस्टर्स हो सकता है वो, अब आपको भी नहीं पता कि आप जिस घर में रह रहे हो उसकी दीवारें किसने खड़ी की थी 40-50 साल पहले, या जब भी खड़ी की होंगी, है ना। अब वो जिंदा है नहीं है हमें तो नहीं पता, बट हम तो मजे कर रहे हैं ना। हम उस रोड पे चल रहे हैं, वो कितनी पुरानी रोड है हमें नहीं पता, किस किस ने वहां पे स्वेट अपना करके, या ठंड में या गर्मी में खड़े होके वो रोड बनाई, है ना, या फिर कोई बिल्डिंग्स बनाई, या जो भी आपका ऑफिस बनाया, उस ऑफिस को भी खड़ा करने, आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, हो सकता है 100 साल पुरानी हो, पर किसी ने तो उसकी फाउंडेशन बनाई थी ना। तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं कि उसने इतनी मेहनत करके एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है ना? एक आइडिया किसी के मन में तो आया होगा। तो बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। तो जैसे हमें इन लोगों से ही सीखना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है या न्यूटन है ना? तो आगे बढ़ते हैं। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in life, you have to practice it. हम्म। तो उसने बोल दिया है कि यू हैव टू प्रैक्टिस इट। मतलब इस, एक सेकेंड मैं वापस सिर्फ दिखा रही हूँ पेज।
हाँ, तो येट स्टिल ग्रैटिट्यूड्स पावर इज अननोन टू मोस्ट पीपल टुडे। बहुत सारे लोगों को आज भी इस ग्रैटिट्यूड की पावर के बारे में नहीं पता। नहीं पता। आप बहुत चूजन वन हो जो इसको बुक को पढ़ रहे हो। आपको नहीं पता कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास की नेगेटिविटी में अभी तक जी रहे हैं, एंड दे डोंट नो अबाउट ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर। बट to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it। है ना? अब आपने पढ़ तो ली, लेकिन आप तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना होता है, तभी आप उसकी मैजिक को देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। Life, you have to practice it. ये यहाँ खत्म हो गई है, एक सेकेंड। आगे चलेंगे, माई डिस्कवरी पढ़ेंगे हम आज। Imagine ये क्या हुआ? मैजिकल बुक आ गई। एक सेकेंड, मैं बुक की शेयर कर देती हूँ। माई डिस्कवरी पढ़ते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद है ही ऑडियो में। माई डिस्कवरी। सो मेरी स्क्रीन दिख रही है या मेरे को करनी पड़ेगी ना शेयर? नहीं नहीं दिख एक रही। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, ठीक। अभी हाँ दिख रही है, दिख रही है। ठीक है। माई डिस्कवरी। सो अब रोंडा वन अपनी डिस्कवरी बता रही है कि उनकी लाइफ में कैसे बुक आई, कैसे उनकी लाइफ में ये सब चेंजेस आए। So, my story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person। तो रोंडा बहन अपनी बात बता रही है कि मेरे से अगर कोई 6 साल पहले पूछता कि क्या मैं ग्रेटफुल पर्सन हूँ, तो मैं बोल देती हाँ हूँ ना। जब मेरे लिए कोई कुछ करता है तो मैं कर ही देती हूँ थैंक यू, तो ग्रेटफुल तो मैं हूँ ही ना। किसी ने मुझे कुछ दिया, किसी ने मुझे कुछ कर दिया, तो मैंने उसको थैंक यू बोल दिया। लेकिन उस थैंक यू का मतलब वो नहीं है, ग्रेटफुल होने का मतलब वो नहीं है कि कोई आपके लिए कुछ करे तो आप थैंक यू कर दो। उसको पता ही नहीं था थैंक यू बोलने का असली मतलब क्या होता है। तो just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I really worked hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living a continuous undercurrent of stress। मैं मतलब उसकी लाइफ नेगेटिव में थी, बहुत ज्यादा, है ना? चैलेंजिंग थी, डेट में थी, है ना? और बढ़ता ही जा रहा था वो डेट और finances में, और ये सब, है ना? My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person। यानी finances में भी, relationship में भी उसकी लाइफ में काफी problems थी। While I was what to be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and latest illnesses going around each season। आई हैड मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना? तो उसको हेल्थ में भी बार बार ब्रेकडाउन आ जाता था। कभी कोल्ड हो गया, कभी फीवर हो गया, सीजन सीजन चेंज होने से जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो हो जाते थे, थक जाती थी। I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me। ये तो सबके साथ होता था, होता है, आई डोंट नो, कि हम कहीं घूमने गए
वेकेशन पे गए, छुट्टियों में गए, और फिर जैसे ही वहां से आने का टाइम हो तो फिर एकदम से बहुत ही अजीब सा फील होने लग जाएगी, अरे अब तो बहुत काम करना पड़ेगा, अब क्या, मुझे तो मंडे आ गया या संडे शाम को वो फीलिंग आ गई। तो ये आई डोंट नो अब किसके साथ होता है नहीं होता बुक करने के बाद, लेकिन पहले तो जरूर होता था। लेकिन आई कैन सर्टेनली से अबाउट माई सेल्फ, मेरे को अब ऐसी फीलिंग नहीं आती, वापस आने में भी उतनी ही खुशी होती है जितना वेकेशन पे हो रही होती है। तो आप अपना अपना देखो। और ऐसा ही उसको लगता था रोंडा बन को कि हाय अब मैं वेकेशन पे आ तो गई है, मुझे घर जा वापस जाके कितना काम करना पड़ेगा, उसको सारा पे करना पड़ेगा जो भी मैं यहाँ पे मजे कर रही हूँ, है ना। तो आई वॉज नॉट लिविंग, आई वॉज समझदार, मैं सर्वाइविंग। रीड कर देती हूँ, तू समझा दे। ठीक, मैं हाँ करो रीड कर करो देती करो करो, यहाँ से आई वॉज हूँ। I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. है ना। तो वो बता रही है कि वो जी नहीं रही थी, बस सरवाइव कर रही थी, एक सैलरी से दूसरी सैलरी, सैलरी आती थी खत्म हो जाती थी, एक प्रॉब्लम गई नहीं कि दूसरी आ गई, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको एक सीक्रेट पता चला लाइफ का, है ना। उन्होंने सीक्रेट बुक लिखी थी, जब जब सीक्रेट मूवी बनाई थी उस टाइम पे उनकी लाइफ में एक सीक्रेट पता चला, जिसकी वजह से, वो सीक्रेट आपने मूवी देख ली है, क्या सीक्रेट था, तो जिसकी वजह से उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ईच डे करना स्टार्ट किया तो उनकी लाइफ चेंज हो गई। द मोर शी प्रैक्टिस द मोर मिराकुलस वर द रिजल्ट्स। तो उसकी लाइफ मैजिकल हो गई। आप अपनी अपनी लाइफ में भी देख लो किस किस ने कितना कितना प्रैक्टिस किया और कितनी कितनी मैजिकल उनकी लाइफ हुई है। या फिर जो नए हैं तो वो इस चीज से इंस्पायर हो सकते हैं कि ऐसा होता है। यस साक्षी आगे। For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days become filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships become more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than हम्म। anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. वाह, थैंक यू साक्षी या। वाओ, सो कितना कितना प्यारा उन्होंने लिखा कि सब कुछ चेंज हो गया उनकी लाइफ में। मतलब वो माइनस से कहाँ पहुंच गई। वो माइनस भी थी, डेट मतलब माइनस ही होता है ना। तो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ उनकी डेट फ्री हो गई, मनी मनी आ गया, रिलेशनशिप वर्क करने लग गए, है ना। सब कुछ अच्छा अच्छा फील होने लग गया, रिलेशनशिप में मीनिंग आ गया, फैमिली और फ्रेंड्स का गुड टाइम्स आ गए, और सबसे बड़ी बात, वो खुश रहने लग गई। Then I thought it was possible to feel blissfully happy, the happiest I had ever been. सो यस, सो आप भी अपनी अपनी लाइफ में देखो, इनफैक्ट हमें शेयरिंग लेनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने पहले बुक प्रैक्टिस करी है। हम कल ले लेंगे थोड़ी सी शेयरिंग्स कि कैसा फील होता है उनको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद, और उससे पहले उनकी लाइफ कैसी थी। द होल लाइफ मैजिकली चेंज, मतलब ये तो अपने बारे में बता रही है, लेकिन हम सब भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, वो भी ये बात 100% कह सकते हैं कि यस, हैप्पियर देन एवर बिफोर। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे, वी आर ऑलरेडी 440। तो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड, और कल हम कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर?
मैं थोड़ा स्पीड में थी क्योंकि हमें 4 दिन में इंट्रोडक्शन खत्म करनी है, बट आई होप आई कुड क्लैरिफाई। कोई क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड। चलो सब अपनी अपनी वीडियोस ऑन करेंगे, 2 मिनट हम ग्रैटिट्यूड करेंगे बिना। देखो, वीडियो ऑन करने से ना एनर्जी ट्रांसफर होती है एक दूसरे को, अच्छी वाली। Dvija is saying, I got it. I need to practice and practice. Very good, Dvija. देखो, वेरी गुड। तो देखो, बच्चों को भी समझ आ गया कि मोर प्रैक्टिस करनी है ग्रैटिट्यूड की। गुड, सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। Let's fold our hands and close our eyes and be really, really grateful. Maybe you can also keep your hand on your heart to feel it more. So thank you, Bhagwan Ji, for the morning sunrise. Thank you so much for everything that you have given. जो सुबह सुबह रोशनी आप हमें देते हो, इतनी प्यारी रोशनी, इतना अच्छा दिन बनाने के लिए थैंक यू भगवान जी। थैंक यू सो मच, हमेशा हमें हीट और लाइट देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी। हमारे सर पे एक छत है, एक प्यारा सा घर है जिसमें वार्म रहते हैं हम इतनी ठंड में भी, और गर्मियों में हम कूल रहते हैं। थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी का, थैंक यू वाटर सप्लाई का, थैंक यू गैस सप्लाई का, हमारे घर खाना बहुत अच्छे से बन पाता है। थैंक यू वाटर का, जो हमारे शावर से, हमारी टैप से हर समय आता है। थैंक यू, जिसकी वजह से हम अपने सारे काम प्रॉपरली कर पाते हैं। थैंक यू वाटर, हमारी प्यास बुझाने के लिए, हमारे अंदर ब्लड का प्रवाह करने के लिए। थैंक यू वाटर। थैंक यू हीट, हमें अंदर से वार्म रखने के लिए। थैंक यू उस हीट के लिए जिसकी वजह से हम खाना बना पाते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, उस स्काई के लिए, उस स्पेस के लिए जिसमें हम अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। थैंक यू सारे मनी का, जो हमें हमारी लाइफ में दिया, जिसकी वजह से हम सारी चीजें इंजॉय कर पाते हैं, मजे कर पाते हैं, बाहर खाना खा पाते हैं, बाहर वेकेशन एंजॉय कर पाते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं जीने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सारी एजुकेशन का जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी। थैंक यू हमारे इतने प्यारे पेरेंट्स का। थैंक यू सो मच। थैंक यू इस टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, जूम का, जिसकी वजह से हम ये सेशंस ऑनलाइन ले पा रहे हैं। थैंक यू इस जूम लिंक का, जो एक पेड जूम लिंक है कि लेट्स से कि हमारा सेशन अपने आप बंद नहीं होता और हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। थैंक यू सो मच सरिता जी, जिन्होंने हमें अपना लिंक दिया, जिसकी वजह से हम ये मैजिक बुक बहुत स्मूथली कर पा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much for this beautiful session. Thank you. Thank you, everyone, and see you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very Thank you. much. Thank you. Thank you.